Microphone. Thank you very much, Maharaj. Mahaman Prabhu will give you the essence. Thank you very much, Guru Prasad Maharaj. We are truly honored that you could come for this festival of the opening of this Gurugram temple. Maharaj has so many responsibilities as a GBC member, yet he took out so much time. And personally feel Gopal Krishna Maharaj had made so many wonderful decisions, very meticulous in making any decision. He was really thoroughly mature, every aspect of it. I feel that one of the best decisions that His Holiness Gopal Krishna Maharaj made is that he selected His Holiness Guru Prasad Maharaj as his successor for India. We are truly honored to have such a humble Vaishnava, at the same time very qualified. Maharaj always speaks very eloquently. Yesterday he spoke very eloquently, thanking all the devotees, encouraging all the devotees. And today also Maharaj spoke very eloquently about the importance of deity worship. And we as Gaudiya Vaishnavas, we follow both Pancharatrika as well as Bhagavad Marga. Although chanting of the holy names is very important and in some respects sufficient also, but we, along with the chanting, we have to do the Pancharatrika Marga, which means deity worship. Maharaj gave some very deep insights into the worshipping of the deities, how we should take very nice care of the deities. And I would like to just share one pastime, my first darshan of Srila Prabhupada. That was in London in 1972 and related to also deity worship. Before that, I was all confused, like everyone else before coming to Krishna consciousness. All different sorts of philosophies. What is the purpose of life? Just all concoctions and others. My first darshan of Srila Prabhupada in the Radha London Ishwar temple. Prabhupada named so nicely, London Ishwar, but elevated, we will smash Darwin's theory. These two opening sentences of Prabhupada, when I had it first, that impressed me very much. And here again, I'll take this opportunity to thank His Holiness Guru Prasad Maharaj. We are really honored. We are very confident that Maharaj will thoroughly follow the legacy which Gopal Krishna Maharaj set for the whole of India. He's already doing that and he's going to be doing that. Thank you very much, Maharaj. He was just saying, I need. Oh. Gopal Krishna Maharaj was just saying, I needed some engagement. No, that's all. So, His mercy upon me. He found the best person for that engagement. That was His Holiness Guru Prasad Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Despite so many responsibilities, he's also taking care of Latin America and many other parts of the world. But he's giving so much time. We are so grateful to him. So much time. You'll find in almost every temple he has visited in India. And he keeps on doing that. Thank you very much, Maharaj. I would have liked to that Maharaj would continue, but he has to go. So I will continue my part in Hindi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Maharaj. Thank you. So, क्योंकि महाराज को भी जाने का है, तो महाराज ने रिक्वेस्ट किया था
कि थोड़ा सा प्रवचन कंटिन्यू रहे। मैं एक श्लोक और एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में है, चैप्टर नंबर 4 एंड श्लोक नंबर 64। सॉरी, किसी के पास मोबाइल्स हैं तो आप देख सकते हैं। 9464, 9464, I think it's there on the board also. Yeah. No. Please change it to 9464. बहुत सुंदर श्लोक है। ये समय के थोड़ी कमी है, इसलिए हम सीधा श्लोक और तात्पर्य में चले जाएंगे। एक बार मैं इसका रोमन ट्रांसलिटेशन भी पढ़ लेता हूँ। नाहम आत्मना आशसे मद्भक्ता साधु भिर्विना श्रियम चात्यंतिकम ब्रह्मन येषाम गतिर अहम पराम। ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं श्लोक, दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, आप कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। बहुत सुंदर श्लोक। ये भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे भक्तों के बगैर मैं कुछ भी भोग नहीं करना चाहता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं। महाराज ने भी यही बताया था अभी कि आत्मनिर्भर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मनिर्भर है, हम कुछ को ऑफर नहीं करने की जरूरत, बल्कि आत्मनिर्भर तो हैं, पर वो हमारे भले के लिए हमको अवसर देते हैं कि कुछ हम भगवान को अर्पित कर सके। जो हम भी अर्पित करते हैं वो हमारे लाभ के लिए है, नहीं तो भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने हेतु वे अपने भक्तों का सहयोग चाहते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण हैं, किंतु वे वृंदावन में अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने हेतु अपने भक्त ग्वाल बालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की हलादिनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, वे निश्चय ही श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। भगवान तो अनंत हैं ही,
पर वो चाहते हैं कि उनके भक्तों की संख्या भी असीमित हो, अनलिमिटेड हो। इस प्रकार वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे उनकी शरण में आ जाएं, क्योंकि अनंत कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिक अधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का नियंत्रक बन जाता है। कितना सुंदर है। जो भी ये मिशन को एक्सपांड करना चाहता है, कर रहा है, चाहे राधा गोपीनाथ, ललिता विशाखा देवी की जाए, जो भी ये मिशन को एक्सपांड करना चाहता है, वो भगवान को नियंत्रक, उसको भगवान का नियंत्रक, कंट्रोलर बन जाता है। अजीत है भगवान, लेकिन जो भी भक्ति में आए वो जीत लेता है भगवान को। और प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। यद्यपि श्री भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता तो वह अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करता। इसलिए अपने इस सुख की पूर्ति हेतु वह कदाचित दत्तक पुत्र बनाता है, मीन्स अडॉप्ट्स अ सन और डॉटर, है ना। अगर किसी राजा भी हो, इतना धन भी हो, लेकिन संतान नहीं हो तो वो बहुत दुखी रहता है, तो वो अडॉप्ट कर लेता है, गोद में ले लेता है। आजकल तो कुत्ते बिल्लियों को गोद में लेने लगे हैं। हमने सामने देखा है, कई लोग बहुत लोनली फील करते हैं तो लेट्स अडॉप्ट अ कैट और अ डॉग और समथिंग। कम से कम अडॉप्ट करना तो गाय को करो, गाय को अडॉप्ट कर सकते हैं, पर वो नहीं करेंगे, है ना। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञात है, अतएव शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। यह बहुत सुंदर श्लोक उस प्रसंग में है, उस प्रसंग से है जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति एक बहुत गंभीर अपराध किया और उनको ना ही ब्रह्मा जी और ना ही भगवान शिव जी शरण दे पाए। उन दोनों ने कहा, आपका अपराध इतना घोर है, आपके पीछे ये जो सुदर्शन आ रहा है आपका वध करने के लिए, ये इसके लिए हमारी कुछ नहीं, इसके सामने हमारी कुछ नहीं चलेगी। अगर आपको रक्षा चाहिए तो आपको साक्षात भगवान विष्णु, जिनका ये चक्र है, और अम्बरीश जो इनका भक्त है, उन्हीं की शरण लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में दुर्वासा मुनि अपनी
जीवन को रक्षा करने के लिए वैकुंठ में पहुंच के इतने पावरफुल शक्तिशाली सिद्ध योगी थे कि साक्षात वैकुंठ तक जाने की क्षमता भी थी, और वहाँ भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेनी पड़ी। और उस समय भगवान विष्णु ये श्लोक जो 9वें स्कंद में चैप्टर नंबर 464 ऑनवर्ड्स बताते हैं कि आपने एक बहुत घोर अपराध किया है मेरे भक्त के प्रति। मेरे प्रति कोई अपराध हो मैं सहन कर लूँगा, मेरे भक्तों के प्रति कुछ अपराध किया वो मैं नहीं सहन करूँगा। कुछ ही आगे श्लोकों में भगवान कहते हैं विष्णु के भक्त मेरे हृदय में है, साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदयस्तु हम मत अन्यत न जानती ना ते भी मनागपि। साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता है। साधु मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं भी साधुओं के सिवाय कुछ नहीं जानता। और साधु मुझे नियंत्रण मिल कर लेते हैं, दे कैन कंट्रोल मी। इसे पूरे श्लोक में कहते हैं कि मेरे इतने ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान का डेफिनेशन ही यह है, षड ऐश्वर्य पूर्ण। पर ये ऐश्वर्य मुझे आनंद नहीं देते, दिव्य आनंद नहीं देते मेरे भक्तों के बिना। मेरे भक्तों से ही मुझे आनंद आता है। उदाहरण बहुत सुंदर दिया, कोई राजा हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, धनी व्यक्ति हो, अपने आप को बहुत दुखी मानता जब तक कोई संतान ना हो जिससे उसको आनंद मिले, तो इसलिए अडॉप्शन करता है, करने जाता है। सो अर्लियर ऑन इसी परपट में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो उनकी इच्छा भी यही है कि भक्तों की संख्या भी असीमित हो, कोई उसमें सीमा नहीं हो, बढ़ते जाएं। इसीलिए वो अवतारित होते हैं। और खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, जिन्होंने ये कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन किया है, पतित पावन अवतार हैं। कृष्णा प्रेम अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट, कृष्णा प्रेम अवेलेबल था, लेकिन कृष्णा प्रेम बहुत गिने चुने लोग ले सकते थे। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत एलोक्वेंटली उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यद्यपि कृष्णा प्रेम अवेलेबल था, पर लेकिन कृष्णा प्रेम एक भंडार में सील किया हुआ था। भंडार, गोडाउन के अंदर सील किया हुआ था, और इतने मजबूत ताले लगे हुए थे, वो गेट को खोलना छोड़ो, वो ताला ही कोई नहीं तोड़ पा रहा था, क्योंकि कृष्णा प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ चीज़ है। लेकिन जब ये 5 तत्व आए, उन्होंने आते ही ये लॉक तोड़ दिए और गेट खोल दिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इतने एलोक्वेंटली बताते हैं कि लूटिया, उन्होंने लूट लिया जो कुछ रखा हुआ था, सीक्रेटली रखा हुआ था, लूटिया, लूट के खाया, फिर दिया और उजाड़ दिया। और ये जो गोडाउन जो था, इसको खाली कर दिया। किसका करना? कृष्णा प्रेम का गोडाउन भरा हुआ था, उसको खाली कर दिया। पर ऐश्वर्य भंडारा, कृष्णा प्रेम 7 गुना बढ़े, 7 मीन्स 100, 7 जितना वो खाली करते वो 100 गुना और बढ़ जाता। ये दिव्य और आश्चर्य, उन्होंने जो आश्चर्य यूज वर्ड किया, आश्चर्य भंडारा कृष्णा प्रेम 7 गुना बढ़े। कृष्णा प्रेम लूट लिया उन्होंने, फिर 100 गुना बढ़ दिया। हे कृष्णा दास कविराज जी बहुत एलोक्वेंटली बताते हैं।
और कहते हैं कि उन्होंने लूटा। अभी तक हम कृष्ण लीला में क्या सुनते आ रहे हैं, कृष्ण जी ने चोरी की है। क्या चोरी की है? मक्खन चोरी की है, बादल का सौंदर्य चोरी की है, गोपियों के वस्त्र चोरी की है। ही इज एक्सपर्ट थीफ, नो डाउट, कई चीज़ें चोरी की हैं, लिस्ट इज एंडलेस, पर उनको थीफ ही बोला गया है, स्टील ही कहा है। अभी कृष्णदास कविराज जी महाप्रभु जी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, इन्होंने तो लूट लिया है। क्या लूटा है? वो छोटी चीज मोटी चीज नहीं लूटने वाले, उन्होंने कृष्णा प्रेम लूट लिया है, भंडार को खाली कर दिया। पर वो भंडार ऐसा है, दिव्य भंडार है, जितना उसको लूटेंगे वो उतना 100 गुना बढ़ जाता है ये भंडार। और फिर आगे चलकर कृष्णदास कविराज इनके नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि पात्र अपात्र ना करिह बचार। कोई पात्र हो, योग्य हो या अपात्र हो, उसका विचार नहीं वो करते। फिर क्या? स्थान स्थान, ना ही स्थान स्थान, कौन से स्थान, उस स्थान में जाना, उस स्थान नहीं, वो क्यों नहीं करते। ये जाबे देखे तारे दे कृष्णा प्रेम धान, जिसको भी जहां भी देखे, कोई क्वालिफाइड हो या नहीं हो, उसको कृष्णा प्रेम दे देते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है, इसलिए नमो महावदन आया, कृष्णा प्रेम प्रधाय थे, कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नामिनी घोरा त्रिशा। सबको कृष्णा प्रेम, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पर एट द सेम टाइम जो एक्चुअली सिंसियर पर्सन होता है वो ट्राइज टू गेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, ही ट्राइज टू रीच द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। इसी श्लोकों में कहते हैं कृष्ण जी, मैं साधुओं के हृदय में हूँ और साधु मेरे हृदय में है, साधु मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं भी साधुओं के सिवाय कुछ नहीं जानता। वृंदावन में एक संत, आपने समझ सुना, सूरदास जी, और वही एक और नाम उनका बिल्वी मंगल ठाकुर था। तो ये बिल्वी मंगल ठाकुर सूरदास जी, इन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें फोड़ ली थी, बिल्कुल नेत्रहीन बन गए थे, क्योंकि वो माया से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एक बार उनको एक्सपीरियंस हो गया कि एक प्रॉस्टिट्यूट चिंतामणि, वो पहले की कथा थी, उससे अट्रैक्शन हुई। वही प्रॉस्टिट्यूट ने कहा, जितनी लगाव आपको मेरे से है, अगर आप भगवान से करते आप अब तक कहाँ के कहाँ तक नहीं पहुँच जाते। उस समय उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, अभी से मैं कोई माया का नहीं सोचूंगा, और आंखें फोड़ ली और कैसे भी चलते चलते वृंदावन आए। और वृंदावन में आए तो एक हर रोज एक छोटा सा बालक आता और एक दूध का भरा हुआ लोटा उनको दे देता और कहते, गोसाई जी आप पी लीजिए, बाद में मैं लोटा ले जाऊंगा। वो समझ गए ये कोई बालक है, क्योंकि बात से समझ गई कि ये बालक है। तो पर उनके मन में शमशान, ये है कौन ये बालक, हर रोज आता है और दूध दे देता है मुझे को और चले जाता है, तो मैं कल ये बालक को पकड़ूंगा, फिर मुझे मालूम पड़ जाएगा कि बालक है कौन। तो वो बालक आ गया, आप समझ गए होंगे कौन था बालक, अभी बताएंगे भी हम आपको। तो जैसे इसने लोटा दिया दूध का भरा हुआ, तो इसने सूरदास जी ने वो दूध का लोटा लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। अभी तुझे जाने नहीं दूंगा, बता तो कौन है। लेकिन वो बालक अपने गैस कर लिया कौन होगा, इतना स्ट्रांग था, छोड़ के भाग गया, निकल गया। तो उस समय सूरदास जी कहते हैं, बहुत फेमस स्टेटमेंट, तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानता हूँ, वो भी समझ गए कौन था ये बालक। मैं तुझे स्ट्रांग तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकलोगे, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के हृदय से कभी नहीं निकल सकते। उनका वास ही उनके भक्तों का हृदय है। तो चैतन्य लीला में भी एक प्रसंग आता है, चैतन्य महाप्रभु जी निमाय अपने ही घर जगन्नाथ मिश्रा
और सचिरानी के घर में बैठे थे और सत्संग हो रहा था। तो अचानक महाप्रभु जी कहने लगे, अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो डिवोटीज बहुत चौंकते रह गए, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? घर में ही बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। सचिरानी और जगन्नाथ मिश्रा का जो घर था उसी में ही बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो चौंक गए, लेकिन उनमें साहस नहीं था उनको पूछने का कि क्या। तो उन्होंने आपस में चर्चा की और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये प्रश्न मुरारी गुप्त के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि मुरारी गुप्त किसका अवतार है? कौन बताएगा? हनुमान का अवतार है। तो बहुत इंटीमेट अंतरंग भक्त है रामचंद्र जी का, उसको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मालूम होगा। तो हम मुरारी गुप्त से पूछेंगे। तो मुरारी गुप्त से उन्होंने ये प्रश्न पूछा, ये क्या महाप्रभु कहते हैं घर में ही बैठे हैं लेकिन कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ। तो मुरारी गुप्त ने बताया, इसका अर्थ ये है कि एक्चुअली महाप्रभु या भगवान कृष्ण हो, उनका असली वास अपने भक्तों का हृदय है, सो अपने हृदय भक्तों के हृदय में जा रहे हैं। ये उनके कहने का अर्थ था, चैतन्य महाप्रभु जी का कहने का ये अर्थ था कि मैं भी घर जा रहा हूँ। तो कृष्ण जी चाहते हैं उनका मिशन जो है एक्सपांड होता रहे, बढ़ता जाए, है ना। अभी हमने पढ़ा ये एक ओशियन ऐसा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस सागर ऐसा, ऑर्डिनरी सागर जो होता है उसकी कुछ सीमा होती है, नहीं तो कुछ सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, पर उसकी लिमिटेशन होती है, अपन सेम सी शोर तक ही जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा समर्पणम परम विजायते श्री कृष्णा समझे, ये ओशियन ऑफ लव ऑफ गॉड है जो ये असीमित है। इट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग। एंड ये एक्सपैंड कैसे हो रहा है? ये एक्सपैंड हो रहा है शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद और हमारा सब जो गुरु वर्ग है उनकी कृपा से हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम सब जो डिवोटीज आए हैं, मुझे लगता है लगातार सब डिवोटीज जो भी आए हैं वो कोई ना कोई ये डिवोशनल बुक्स जो हैं प्रभुपाद की जी द्वारा जो लिखी हुई है बुक्स, उनके द्वारा ही आए हैं। मेरे इस्कॉन में आने से पूर्व मैंने बहुत से लिटरेचर्स पढ़े थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज ही हो जा रहा था, कुछ नहीं समझ। भगवद गीता भी और किसी से सुनी नहीं, असर पड़ा, लेकिन भगवद गीता एज इट इज़ जब भी पढ़ी तो हमारे को एक्चुअली कुछ मीनिंग लगा, भगवद गीता में क्या है वो समझ आई। इसलिए भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस गीता का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए भक्तों में। ये इदम परमम गुह्यम मद भक्त्या अभिधास्यति भक्तिम मयि परम कृत माम एवाशसि असंशया। कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ गीता मेरे भक्तों में प्रचार करेगा, मैं गारंटी देता हूँ उनके लिए भक्ति होगी, और एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही विल कम टू मी। वही बात आज के तात्पर्य में लिखी है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करेगा, भगवान उसे अपनी शेल्टर देंगे। और यही प्रभुपाद जी का मिशन में उन्होंने सबसे ज़्यादा बल मुक्ति शिष्य में दिया। टेम्पल ओपनिंग्स भी हैं, बहुत से टेम्पल्स खोले उन्हें। जब यहाँ थे प्रभुपाद जी प्रकट रूप में 108 टेम्पल्स खोले। बुक डिस्ट्रीब्यूशन अधिकतर ज़्यादा बल देते थे, गुरुकुल्स खोले, फार्म कम्युनिटीज़ खोले, पर सबसे ज़्यादा बल
उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर दिया, और हर वर्ष जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन हो रही है उनके लिए सबको प्रोत्साहित किया। एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को इंटरव्यू जब भी ले रहा था कि अभी तो आपका मिशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? रिपोर्टर ने ऐसा प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद जी ने भी उनको बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक्चुअली ये उत्तर बहुत ध्यान से सुनिए, शायद आपने सुना भी होगा, वीडियो पर भी है, ये वीडियो पर भी देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से और पिक्चर के साथ प्रभुपाद जी को ये प्रश्न पूछा, जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी का उत्तर है, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं हमेशा मेरी पुस्तकों में जीवित रहूँगा। ये स्टेटमेंट प्रभुपाद की मेरे लिए तो ऐसा संजीवनी, लाइफ गिविंग टॉनिक, और सबके लिए भी, ये सब इस कॉन्डिवोटी के लिए भी एज अ टॉनिक रहेगा। प्रभुपाद जी ने जो तपस्या की, सभी उनके पार्ट ऑफ जो योजनाएं थी ध्यान दिया, पर मुख्य उनका आदेश था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ में ही चीपीवाड़ी में, आप लोगों जिन्होंने अभी तक वहाँ दर्शन नहीं किए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है जाके दर्शन कीजिए चीपीवाड़ा में। वहाँ में प्रभुपाद जी ने ये जो हमारी बुक्स हैं ट्रांसलेशन, और वहाँ से ही उन्होंने बुक प्रिंटिंग अरेंज की। बहुत हम्बल सराउंडिंग्स था। आजकल हमको तो सब कुछ एयर कंडीशनर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, फलाना फलाना, यही। प्रभुपाद जी इतने सिंपल से चीपीवाड़ा उन दिनों में रहते थे, और उनके एक मित्र जो प्रभुपाद जी को सहयोगी हेल्प करते थे, बताते हैं कि प्रभुपाद जी कभी कभी ये नाश्ता भी नहीं करते, पैसे बचाते, वो पैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाए। और एक प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित लेटर है चिपीवाड़ा में टेम्पल में, हमको डिवोटीज ने बताए। वो लेटर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी पैसे बचाने के लिए, ताकि पैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाए, मैं ये जो पेपर था वो प्रेस में लेकर जाने का था, ओके प्रेस नाम था, ओके प्रेस में लेकर जाने का था, रिक्शा में लेकर जाने का था। मैं रिक्शा का भाड़ा बचाने के लिए मैं अपने सिर पर ये पेपर लेकर जाता था प्रेस में। हम सुनते हैं तो हमको आंसू आ जाते हैं कि प्रभुपाद ने कैसी तपस्या की। और उसी लेटर में फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण जी, वसुदेव उनके पिताजी के आदेश पर, कृष्ण जी बेबी कृष्णा को एक टोकरी में यमुना जी के पार लेकर गए। जन्माष्टमी हम सब जानते हैं, कृष्ण जी को एक टोकरी में लेकर गए वसुदेव। और प्रभुपाद जी ने उस लेटर में लिखा है कि मैं श्री कृष्ण जी का जो संदेश है वो भागवतम के रूप में ये पेपर जो मैं सिर पर लेकर जा रहा हूँ इसमें लिखूँगा, और 7 समुंदर पार जाकर दुनिया में प्रचार होगा। और यही प्रभुपाद जी ने किया, वही पेपर अपने सिर पर लेकर जाते थे और जाकर उन्होंने प्रिंटिंग के लिए दिया। सो एक रिसेंटली हमारी मीटिंग्स हुई थी, इस्कॉन लीडर्स के ICC की मीटिंग थी, वहाँ में ये डिस्कशंस चल रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे बढ़िया माध्यम है प्रचार का। हम कुछ लेक्चर देंगे, थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे, थोड़ी देर में लोग थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे। बुक रहेंगी, हमेशा उसके पास रहेंगी। प्रभुपाद जी ने भी आदेश दिया,
हर एक के घर में चैतन्य चरितामृत होनी चाहिए, हर एक के घर चैतन्य श्रीमद् भागवतम का सेट होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे ये चैतन्य चरितामृत जो है ये एक मिठाइयों का भंडार है, एक से एक स्वादिष्ट मिठाई है, बंगाली मिठाई। आप एक खा लेंगे दूसरी एक और आ जाएगी। बंगाली मिठाइयों का आप सबने टेस्ट किया होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, एक से एक आते रहेंगे। और चैतन्य चरितामृत तो प्रभुपाद जी भी जब जा रहे थे जलदूत में तो उनको अपने डीटीज गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर डीटी से बहुत सेपरेशन फील हो रहा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस समय मुझे चैतन्य चरितामृत से ही बहुत हौसला मिलता था ये पढ़ने से, इसलिए हर एक को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा जिस घर में और या जिस स्थान में चैतन्य चरितामृत या भागवतम होगी, विशेष तौर पर भागवतम उन्होंने कहा है, साक्षात श्री हरि का निवास होगा वहाँ में। तो लास्ट में मैं वो पॉइंट जो हमारी आईसीसी लीडर्स में आया था, एक बहुत सुंदर रियलाइजेशंस आए कि एक्चुअली हमारे इस काम के जो भी डिवोटी हैं, कोई भी हमारे डिवोटी हैं, हमारी पहली आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, साक्षात रूप से या असाक्षात। इनडायरेक्टली हिंदी में क्या कहेंगे? इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष, थैंक यू, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, एक्सक्यूज मी, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमारी आइडेंटिटी, हर एक इस्कॉन डिवोटी की आइडेंटिटी एक और एक ही होनी चाहिए। ही इज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर। हरे कृष्ण। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारी मूवमेंट एक्सपांड होगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारी मूवमेंट यहाँ तक पहुँची है। डायरेक्टली करो, जाकर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, या फिर फैसिलिटेट द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, पर प्रिंटिंग करो, अरेंज करो, व्हीकल्स अरेंज करो, और चाहे और प्रसाद अरेंज करो ताकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हेल्दी बने और ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। वो भी एक तरह का है, इनडायरेक्ट है कोई तरह से भी, पर गोल इज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ में one of the best examples was His Holiness Gopal Krishna Maharaj. उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग, बुक रीडिंग का और द्वितीय नहीं है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। उनका ये श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने प्रभुपाद जी का यह instruction कि print as many books as possible and distribute as many books as possible. He has taken to his heart. Personally, I have seen he has gone to distribute books and always encouraging. जो सब भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं, ज़्यादातर महाराज की प्रेरणा से हुई है। तो मैराथन कुछ ही दिन बाकी हैं, कई जगह में ऑलरेडी मैराथन शुरू हो गई है। तो प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली, डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर स्वयं नहीं कर पाते, डायरेक्टली नहीं, पर तो फैसिलिटेट करो ताकि और डिवोटीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। सो आज का जो पर्पट है, जो डिवोटीज एक्सपांड करेंगे इस मूवमेंट को, I'll read exactly what Krishna is saying here. Krishna is, oh, it says gone. Can someone get that? So कृष्ण जी अपने शब्दों में क्या कहते हैं? Nine 464.
ऑफ कोर्स भगवत गीता में तो कहते हैं जो भी ये प्रचार करेगा मैं उनको अपनी शरण दूंगा, भक्ति दूंगा, भक्तिम मई परम कृत ए वश्यसी असन, और इस जन्म के बाद मेरे धाम लौट जाएगा। और फिर इसके अगले श्लोक में भगवद गीता के कहते हैं भगवान ऐसा प्रिय भक्त ना कभी हुआ है और ना कोई भविष्य में होगा जो मेरा प्रचार कर रहा है। तो एनीवे इंग्लिश वाले से हम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले में ऐसा लिखा हुआ है। और ये भी हिंदी का ही है, ओके ठीक है, ओके ओके। इस प्रकार वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे उनकी शरण में आ जाएं, क्योंकि अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी अनंत बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिक अधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का नियंत्रक बन जाता है। He becomes a controller of the Lord. थैंक यू। लास्ट में दामोदर पास टाइम का जो एसेंस है वो सुनाकर विराम लेंगे। इति दृक्ष लीलाबीर आनंद कुंडे, उसी श्लोक में बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं उनसे नहीं जीते जाते, भक्ते जीते, तुम भक्त उनको जीत लेते हैं। और यहाँ में लिखा है कंट्रोल कर लेते हैं, सेम चीज़। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। समय की सीमा देखते हुए अगर एक दो क्वेश्चंस हैं, नहीं तो फिर आज यहाँ विराम लेंगे। थैंक यू। सुंदर गोपाल प्रभु इज़ अ वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल। मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेज़ी में बोलते हैं जो रोलिंग, वो बोलते हैं ना केक्स, या केक्स बनाते हैं, बेकिंग केक्स एंड केक्स। मैं रोटी का एग्जाम्पल देता हूँ, एक से एक रोटी सेकते रहते हैं डिवोटीज के रूप में। सो मेनी डिवोटीज जॉइन। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. So whatever equality you see on account of the mercy of Guru Maharaj, His Holiness Bhagavad Krishna Swami Maharaj, through his association, he is like touchstone. So when we come in contact with great devotees like you, we learn so many things. So Prabhuji, I just had one question, regarding the books, like we distribute books and we charge some fee for each book. So like Prabhupada also emphasized that we should not sell free of cost. Yeah. So two questions, like there's many people who are like in the village area, there are people who
want like books for some time because they feel in India, you know, that if you give free, then people feel very attracted and they want to take. And sometimes if there is charge, then they hesitate, they will not take. What is more important, like suppose if we find that some where genuine people are there, Yeah. and then if you can get some responses, then should we like approach and give them free if they are genuinely interested, or Yeah. what should be our standard? Yeah. प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा and many times. Can I speak in Hindi so that other people can follow, or should I speak in English? हिंदी चलेगा? ओके, तो हिंदी में आंसर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हिंदी के लोग हैं. तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि कई बार हम जो प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारी बुक्स जो हैं एक सेट प्राइस पर होती हैं, तो कई बार गांव में हम जाते हैं तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. वो जेन्युइन केसेस भी होते हैं और कई लोग जो है वो ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर हमारी पॉलिसी है जनरली हम कुछ एक्चुअली बुक से कम, एक्चुअली प्रिंटिंग इज़ मच मोर कॉस्टली, बट वी आर टेकिंग बेसिक जितने कॉस्ट होता है हमारे को, वी आर टेकिंग ओनली दैट मच. एनीवे देयर आर डिफरेंट थिंग्स अबाउट दैट. कई बार प्रॉफिट भी आ जाए, कई टेम्पल्स आर बिल्ट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूशन. पर इन जनरल मैं आंसर कर रहा हूँ कि कभी हम देखें कि कोई जेन्युइन सिंसियर व्यक्ति है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है उसको बुक दे दीजिए, कहीं और से लक्ष्मी आ जाएगी. कृष्णा इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ लक्ष्मी, सो कहीं ना कहीं से आ जाएगी. कुछ सिंसियर लग रहा है तो उसको दे. प्रभु जी का पॉइंट ये था कि अगर फ्री में बांटने लग जाएंगे देन पीपल विल नॉट सीरियसली रीड इट. मुझे फ्री में मिली है, रख दो इधर. थोड़ा पैसा दिया होगा तो पढ़े, अपने पैसे दिया पढ़ूँ तो सही है, क्या है इसमें, है ना. तो जनरली ये सिचुएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वी हैव टू से. कोई लगता है कि कोई बहुत डिज़र्विंग है, पैसा नहीं है उसके पास, ठीक है उसको कम दाम में दे दो, फ्री में भी दे दो, कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं. पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर करते रहना हमारे को. एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि किसी तरह से भी बुक किसी के हाथ में आ जाए, इट इज़ अ बॉम्ब, इट्स अ बॉम्ब. प्रभुपाद जी के वर्ड्स यूज़ किए हैं. सूनर और लेटर दैट बॉम्ब विल एक्सप्लोड एंड दैट पर्सनस हार्ट विल चेंज. एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ. एक प्रोफेशनल थीव था यूरोप के किसी पार्ट में, तो उसकी आदत थी, ही वॉज अ प्रोफेशनल थीव. वो अभी डिवोटी हो गया, उसको पूछा गया कैसे डिवोटी बने, तो वो बताया आई वॉज अ प्रोफेशनल थीव. एक रात को वो किसी के घर चोरी करने गया. तो थीव्स आर वेरी एक्सपर्ट. वो तो घुस तो गया, लेकिन वो घर का जो मालिक था, ऊपर रहता था, उसको भनक लग गई कोई चोर घुसा है, तो वो सीढ़ियों से नीचे आने लगा. तो जैसे सीढ़ियों से नीचे आने लगा तो ये जो था थीफ, उसमें वो थीफ था, तो वो सोचने लगा भागना होगा मुझे, तो पकड़ा जाऊंगा. पर चोरों की आदत होती है, हैबिट इज़ लाइक सेकंड नेचर. अंग्रेजी में आपने सुना होगा ये कहावत है, हैबिट इज़ लाइक सेकंड नेचर. स्वभाव, दूसरा स्वभाव. कुछ तो चोरी करना चाहिए मुझे. तो और कुछ नहीं मिला. टेबल पर प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज पड़ी हुई थी, उनकी भाषा में, क्या भाषा थी पर उनकी लोकल भाषा में थी. तो यही ले गए. तो वो लेकर भाग गया और पकड़ा नहीं गया. तब तक जब तक वो मालिक आया नीचे तक, तब ये भाग गया था. ये एक्सपर्ट होते हैं चोर. तो घर तो कैसे पहुंच गया, तो रात में थोड़ी भगवद गीता देखने लगा. बहुत सुंदर अर्जुन कृष्णा की फोटो, रथ है उसके ऊपर, सब नया वर्ल्ड, इट्स लाइक ए न्यू वर्ल्ड इस भगवद गीता. ये है क्या चीज़, है ना. तो उसमें भगवद गीता में के जो कॉपी थी उसमें लोकल टेम्पल का एड्रेस दिया हुआ था. तो उसने सोचा इट लुक्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, ये फ़ोटो ही इतनी अच्छी नज़र आ रही है कृष्णा अर्जुना की, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मुझको, शायद चोरी के बारे में तो नहीं है, देखूँ. तो एनीवे वो पहुंच गया उधर में, जो लोकल टेम्पल था वहाँ में.
तो लोकल टेम्पल में पहुंच गया, तो वहाँ में डिवोटीज दे रिसीव्ड हिम वेरी वेल, प्रचार किया, प्रसाद खिलाया उसको, प्रीचिंग की, भगवद गीता भी दिखाई, दिस इज अवर मेन बुक, यू टेक इट। और बोलते आई हैव इट, कैसे आई वो नहीं पता पर आई हैव इट। तो एनीवे से उसको इतनी इंटरेस्ट आने लगा भक्तों की प्रचार करने से, हिज हार्ट टर्न्ड एंड ही इज नाउ वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूरोप। तो कभी कैसे हमारा हृदय में कृष्णा कॉन्शसनेस जागृत होगी, वी कैन नॉट नो, बट द सोर्स ऑफ इट इज Prabhupada's books. I know I came because of Prabhupada's books, and I think most of the devotees have come because of Prabhupada's books. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Yes, Prabhuji, you have one question? Prabhuji had one question. बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। इनका प्रश्न आई विल समराइज इट, कि कभी कभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हमको वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हम एक्सपेक्ट करते थे, कभी कभी हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी कभी दिन बीत जाता है, एक भी बुक नहीं वितरण होती है ना, या बहुत कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने शिष्यों को भेजते थे, और कभी कभी उनका स्कोर्स जो था वो आता था बहुत कम था, 1 या 2 ही मैगजीन। भक्ति से वाह, एक भागवत दर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर ली, बैक टू गॉड हैड, एक व्यक्ति को आपने नर्क जाने से बचा दिया है। ही यूज्ड टू बी सो हेल्प। सो ये पॉइंट जो था आपका, हमको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। और ये दूसरा पॉइंट जो आप कहते थे कि क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छी साधना होती है, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा होगा यू विल फील हैप्पी, फिर चैंटिंग अच्छी करेंगे। नो, एक्चुअली इट्स द अदर वे राउंड। अगर आपकी साधना अच्छी होगी, दैट इज़ द मेन थिंग। साधना अच्छी होगी तो सब एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, इंक्लूडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। So main thing is your sadhana. Never compromise on the sadhana. Try to finish your rounds in the morning. प्रभुपाद जी ने बहुत से आदेश दिए हैं। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुरु महाराज के सबसे इम्पोर्टेंट आदेश, वैसे हर एक आदेश इम्पोर्टेंट है, किसी को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। फिर भी जब भी हम यज्ञ पर बैठते हैं दीक्षा के समय, हम क्या संकल्प लेते हैं? 16 मालाएं का जाप करने का। अगर हमारे 16 माला सुबह प्रातःकाल में अच्छे होंगे, हेयरिंग ध्यानपूर्वक भावपूर्वक होंगे, उससे हमारे को शक्ति मिलेगी बाकी की सब एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो साधना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने देखा इन रियलिटी ऑल्सो, जो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी साधना बहुत अच्छी होती है, पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूट करें लेकिन साधना पर ध्यान नहीं देंगे, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। और एक बात यह है, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना वो तो जरूरी है, साथ साथ हमको रीड द बुक्स, यू मस्ट रीड द बुक्स। उससे हमारे को शक्ति ऊर्जा आएगी।
प्रभुपाद जी इतना समय बुक राइटिंग में, ट्रांसलेशन में लगाते थे। दिन भर टीचिंग एक्टिविटीज़ होती रहती थी, मैनेजमेंट भी कुछ करते, रात को मात्र 2 या 3 घंटे सोते, बाकी समय पूरा ट्रांसलेट। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बुक्स मैंने आपके लिए ही लिखी हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और लास्ट प्रसंग में प्रभुपाद जी एक कुछ डिवोटी, एक भगवत नाम का डिवोटी था, मेरा गुरु भाई है, वो प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे, कुछ लाइफ मेंबर आए। तो जब ही वो लाइफ मेंबर चले गए, प्रभुपाद जी ने भागवत दास से पूछा, भागवत तुमको समझ आई? मैं श्लोक वगैरह ये बोला था, इंग्लिश में ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन भागवत दास को वो श्लोक याद नहीं थे, ना ही फिलॉसफी क्या है। तो प्रभुपाद जी ने उनको हल्का से कहा, देखो भागवत मैं जानता हूँ कि आप बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, कई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पुस्तकों का अध्ययन करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद 2 मिनट के लिए चुप रहे, फिर प्रभुपाद जी कह रहे, मैं स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज पढ़ता हूँ, और जैसे मैं ये पुस्तकें पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ मुझे नई बात मिलती है। और उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने एक सबसे रहस्यमयी बात का पोल खोला। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने ये पुस्तकें नहीं लिखी, हर रोज़ प्रातःकाल श्री कृष्ण जी आकर डिक्टेशन देते हैं, मैंने खाली लिखित रूप दिया है इन पुस्तकों। These books are not static, they are very dynamic। हर एक के लिए कुछ ना कुछ सेवा संबंधित, भाव संबंधित, पर कुछ ना कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। They are very dynamic। Here I will end the class। Thank you very much। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हम हिंदी से धन्यवाद करते हैं इस महामंत्र जी का, और इतना सुंदर तरीके से हमको जैसे गुरु शरण महाराज के साथ भक्ति का साथ बताया, कैसे भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं और भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। We're very grateful to Vedas Mahaprabhu for his wonderful session today. The first class in front of Shri Radha Gopinath ji, our two temple. Hare Krishna. So we're very grateful for your presence here. Thank you। And Guru Journal Secretary for all Haryana and doing wonderful services. हमारे पास कुछ भी नाटक करते हैं तो गुरु को फोन करते हैं, पूरी गाड़ी पागल बुलाएंगे। हम ऐसे करते रहे तो बीच में हमको बहुत ही संसार पढ़ के जाएंगे, हमको पार करा धक्का मार के। So thank you। Thank you very much, and I want to thank all the management devotees here, including Sundar Gopal Prabhuji, Rambhadar Prabhuji, Achyuta Hari Prabhu, his good wife, Aniruddha Priya Mataji, and all others, and all of you. You're all part of this team of Shri Radha Gopinath, Lalita Visakha ji. Thank you, Guru. Let's thanks His Holiness Guru Shastri Maharaj and His Mahaprabhu by Lord chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much for all of you joining today. Thank you. We also like to thank His Grace Vashugosh Prabhu and his good wife, who have also come to join this festival. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare.